wonderful morning to everyone, and we're back with our Sunday session. Guys, Sunday session is going to be something that we're going to keep on happening again and again. Abhi hum log next Sunday se start karne wale, this Sunday and perhaps next Sunday we're going to start with and have a different topic. हम लोग थोड़ा format को change करने जा रहे हैं. We are going to have only a 30-minute session, and in 30 minutes में we'll have sort of a monologue, और उसके बाद हम question answer के लिए open कर सकते हैं. The idea is to attract more and more participation of to the extent possible. So that's the whole purpose behind this thing. So welcome all to this wonderful session. But before I get on, मैं सब लोग से question पूछना चाहता हूँ, तो कि मुझे मालूम तो पड़े कि मेरे participants attentive है कि नहीं है. You all know that. I mean, that's one of the ways I keep doing things. But I just wanted to make sure कि मेरे participants attentive है कि नहीं. So मेरा very simple question and quick answer I want. Okay, मैं chat open कर दूँ ना मेरे लिए. Okay, मेरा chat open कर दिया है, and मेरा simple question है: how many of you have a mobile phone that is non-Apple phone? Come on, guys. Non-iPhone. Come on, guys. Just say me. One. Come on. Quick. Doesn't matter, guys. Doesn't matter. Two. Very good. Just put a thumbs also, that's fine. I don't need to see your me. दो alphabet type करने का भी जरूरत नहीं है. Come on, guys. Fantastic. I am glad to see a couple of things. 1, 2, 3, 4. Fantastic. Anybody else? मतलब बाकी लोग attentive नहीं है ऐसा लग रहा है यार. Come on, guys. इतने सारे लोग हैं लेकिन फिर भी response कम आ रहा है. 2 फोन है, उसमें से भी एक फोन आएगा तो भी चलेगा. बट आइडिया ये है कि इट शुड बी वेरी क्लियर कि आपके पास एक नॉन आईफोन है कि नहीं. आप लोग को लग रहा है कि मैं आईफोन बायस टू कि नॉन आई बायस टू, वो पॉइंट है ही नहीं है गाइस. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आई एम स्टार्टिंग विद, सो दैट्स द होल पर्पस बिहाइंड डूइंग दिस. एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू रिस्पोंड? चलो कोई बात नहीं, मेरा दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे ही सकेंगे आप में से कितने लोग ने पिछले 1 ईयर में एक बार किनले एक्वाफिना का पानी पिया है? दोनों में से एक का पानी पिया है. कम ऑन गाइस. ओह माय गुडनेस, आई मीन मुझे ऐसा लग रहा था कि पीपल वर रेडी विद द आंसर. ऐसा लाइक टक टक ऊपर गया है. फैंटास्टिक, सुपर. एक जन तो लिख रहे मेनी टाइम्स. मैं बोला यार भाई एक ही बार पी लिया बहुत हो गया. डजंट मैटर. Fantastic. Can somebody tell me that Kinley is the product of a which company? Coca-Cola. Somebody is saying. Shilpa Ben, Parle का product है Bisleri. So yeah, but you can say क्योंकि एक बार एक वो reverse merger था, but then it's still Coca-Cola that's running the company here, and they write it's a Coca-Cola company product. So ठीक है, doesn't matter. Next time, anybody else? Answer is right. Coca-Cola is the right company, and perfect. Very good. Why are we talking about all these things? इसका लाभ क्या है गाइस? बदलाव यहां पे आना चाहिए कि गाइस हम आज की तारीख में लोकल है ही नहीं. हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी has been telling that we have to make in global. He never said sell in global or sell in local. He says made in India. You can sell globally, you can purchase globally, you can do a lot of things globally, guys. It's just manufacturing की बात कर रहे थे. So idea ये है guys कि हमारा आज का session जो है is focused on couple of strong agendas, and that couple of agendas का पहला point है, ध्यान से सुनना everybody, just look at me guys. Very simple agenda. Global business is today not a choice but compulsion. Global business today is not a choice but compulsion. जरूरत नहीं है, ओके, वो कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है. मुझे करना पड़ेगा. चॉइस होता मैं करूं कि नहीं करूं, चश्मा पहनूं कि लेंस पहनूं, ये रखूं या कुछ और मॉडल रखूं. लेकिन यहां पे तो विकल्प ही नहीं है, मुझे ग्लोबल जाना पड़ेगा, पीरियड. एंड ग्लोबल जाने का मतलब ये नहीं कि मेरे को वहां पे ऑफिस करनी पड़ेगी. इसका मतलब ये नहीं कि मुझे एक्सपोर्ट चालू करना पड़ेगा. इसका मतलब ये नहीं मुझे इंपोर्ट चालू करना पड़ेगा. गाइस पहला है ना माइंडसेट है, ग्लोबल माइंडसेट. मतलब से फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग ए वेरी स्मॉल बिजनेस, किराना स्टोर. मेरे घर के बिल्कुल सामने एक दुकान है, वेरी स्मॉल शॉप, 2 दुकान, वेरी स्मॉल. उनमें से एक दुकान वाला सोचता है कि मैं बाहर के प्रोडक्ट्स क्यों रखूं.
मत रख, दूसरी दुकान वाला रखता है, तू भी कस्टमर को केटर करेगा, वो भी कस्टमर को केटर करेगा, लेकिन उसका जो नंबर ऑफ कस्टमर्स केटर करने का होगा वो बड़ा हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज वहां पे एक यंगस्टर आके बोला कि मेरे को एक चिप्स का पैकेट चाहिए, डोरिटोस या ऐसा कुछ, तो उसने लोकल पैकेट थमा दिया, इसने बोला उसको डोरिटोस ही चाहिए, डोरिटोस ही दे दिया, डोरिटोस लेके निकल गया। डोरिटोस की इंटरनेशनल कंपनी, पीरियड। उसने बोला कि तुम्हारे पास चीज है? हाँ है, मेरे पास ब्रिटानिया है, ये है, नहीं लेकिन मेरे को ये चीज चाहिए। कोई पर्टिकुलर वैरायटी का खाना घर पे बन रहा होगा जिसके कारण इज मेकिंग दैट चॉइस, बाजू वाले के दुकान के पास था, ही बॉट इट। लोकल बिजनेस बंद नहीं होंगे गाइस, लेकिन टर्निंग अ ब्लाइंड आई दैट माय बिजनेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी सस्टेन्ड locally and I'm going to be successful locally is good and was good couple of years back. आज की तारीख में बाय डिफॉल्ट हम सब के बिजनेसेस हैव गॉन ग्लोबल। उसके दो कारण हैं, वी ट्रैवल आउटसाइड, पीपल ट्रैवल। सेकंड, प्रोडक्ट लॉजिस्टिकली इज अवेलेबल एवरीवेयर एंड बिकॉज इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, आज ये हो ये गया है कि टुडे समथिंग दैट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना इज मेड अवेलेबल इन मेक्सिको, अ प्रोडक्ट दैट्स अवेलेबल इन मेक्सिको इज मेड अवेलेबल समवेयर इन इंडिया, इंडिया से जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया से अवेलेबल थाईलैंड में वगैरह वगैरह। ग्लोबल का मतलब ये नहीं कि ओनली वेस्टर्न वर्ल्ड की बात होती है, ग्लोबल का मतलब ये है कि हम वर्ल्ड में कहीं पे भी अपने बिजनेस के लिए क्या तैयार हैं करने के लिए। आर वी रेडी टू मूव? आर वी रेडी टू शिफ्ट? आर वी रेडी टू बोरो? आर वी रेडी टू लैंड? आर वी रेडी टू डू जॉइंट वेंचर? आर वी रेडी टू डू मर्ज? मतलब गाइस, मैं आपको इतने सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं जब थक जाओगे। मतलब हमारा एक स्टूडेंट है जिसको कभी प्रोक्योरमेंट की जरूरत पड़ गई तो उसने प्रोक्योरमेंट के लिए फॉरेन चला गया। दूसरा एक लड़का है उसको सेल्स की जरूरत पड़ी, सेल्स करने के लिए फॉरेन चला गया। हमारा एक लड़का है उसने फॉरेन में ऑफिस कर ली क्योंकि वहां से खरीदना सस्ता था। तो एक लड़का है जिसने फॉरेन में जाके ऑफिस की लेकिन बजट नहीं बैठा तो वहां के एजेंट को हायर किया, एजेंट को वहां पे काम पे लगाया। एजेंट का कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज जितना काम करो उतना ही पैसा देने का है। एंड ही स्टार्टेड अ बिजनेस देयर। 2 साल एजेंट ने काम किया, वंस अगेन ही वेंट बैक देयर एंड ओपन द ऑफिस। हर टाइप के बच्चे अपने पास है। पर सवाल ये उठता है कि जब शुरुआत में हम कोई चीज का ट्रिमेंडस रेजिस्टेंस दिखाते हैं फैमिली में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर एक्चुअली शटिंग डाउन द डोर्स ऑफ डूइंग ए ग्लोबल बिजनेस। डूइंग द बिजनेस माने शटिंग डाउन द डोर्स। एक बंदा आके बोलता है कि अरे तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है आकाश, एक काम करो तुम आके हमारा बिजनेस करो ना। क्या प्रोडक्ट है तुम्हारा? मेरे पास तो कपड़ा है, पर हमारे यहाँ तो कपड़ा इंडिया में ही बहुत कंज्यूम हो जाता है। करेक्ट है, लेकिन आई वांटेड टू गिव दैट पर्सन एक चांस कि तुम आओ, मेरे को भी एक जरूरत है। और हमने मना कर दिया। द मोमेंट हमने मना कर दिया किसी और ने हाँ बोल दिया। जिसने हाँ बोला उसको वहां जाने का चांस मिल गया। अभी मैं यूएई में था एंड आई वाज टॉकिंग टू वन कंपनी और उस कंपनी से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि हमारे पास एक जरूरत है कुछ प्रोडक्ट्स की। मतलब फैंटास्टिक, मतलब पहले आपके पास ये प्रोडक्ट्स नहीं थे? बोले थे, लेकिन जो पहले वाली कंपनी थी उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई है तो वी हैव नॉट सम स्पेस, तो आई वांट अनदर कंपनी टू कम इन। सॉरी, अनदर कंपनी का नाम लिया, अनदर कंपनी का नाम लिया, वो कंपनी तो आ नहीं पाई। उसकी जगह पे देयर आर अनदर 40 कंपनीज that are joined the lineup of that 40 companies. Imagine करो गाइस कि एक ही अपॉर्चुनिटी में कितनी आपके पास लोग आ जाते हैं। मतलब मैंने उसको हमेशा बॉम्बे पार्किंग के साथ रिलेट करता हूँ। एक जगह पे पार्किंग है, यहाँ पे से एक गाड़ी निकल गई है तो इतनी जगह में दूसरी गाड़ी आके खड़ी हो जाएगी लेस देन इन 10 seconds. That's what international markets are. That's what international markets are. लेकिन हमारा सोच क्या हो जाता है कि मेरा बिजनेस लोकल है इसलिए अच्छा है। तो मेरा पहला पॉइंट ऑफ एजेंडा, एज आई सेड, कि इट्स द चेंज इन माइंडसेट गाइस। इट्स नॉट अबाउट एक्चुअली फिजिकली गोइंग ग्लोबल, दैट्स द फर्स्ट माइंडसेट। क्यों बिजनेस मेरा ग्लोबल नहीं जा सकता? अपने आप से सवाल पूछो। हम सब ग्लोबल आज हैं, हम सब, मतलब हम में से पूरे बॉडी में देखो तो हम सब आज कुछ ना कुछ ग्लोबल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ। आई डोंट नो व्हाट। सुबह ब्रश किया होगा, कॉलगेट, इट्स अ ग्लोबल कंपनी।
शायद लेंस पहन लिया, उसमें बॉश एंड लॉन्ग का होएगा, शायद ग्लोबल कंपनी, कार्ल जीस होएगा ग्लोबल कंपनी, और कोई कंपनी होगा ग्लोबल कंपनी। कोई ये पहन लिया तो कोई हो सकता है ग्लोबल कंपनी, इंडिया में बना भी हो सकता है, इंडिया में जिसके अंदर का तार आया होगा वो बाहर से आया होगा, तार नहीं आया होगा टेक्नोलॉजी बाहर से आई होगी, हो सकता है टेक्नोलॉजी यहाँ की, तार भी यहाँ का है, लेकिन पैकिंग मटेरियल बाहर से आया होगा। लिमिटलेस है गाइस, लिमिटलेस है। बट मैं ये करूंगा, ये जब हम बोल सकते हैं कि मैं ये ग्लोबल करूंगा, वो फर्स्ट कंसेंट इन द फैमिली इटसेल्फ इज ए पॉजिटिव वाइब टुवर्ड्स योर फर्स्ट स्टेप। तो ऑल माय वंडरफुल फैमिली बिजनेसेस, एक नंबर अनुरोध है, चांस मिलता है तो घर में इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। कोई बोलता है कि नहीं हमें बिजनेस ग्लोबल नहीं करना है, दैट्स परफेक्टली ओके, पर डिस्कस करो कि क्यों, क्या रेजिस्टेंस है, डर है, चैलेंजेस हैं, लैंग्वेज बैरियर्स हैं, पैसा घूम जाएगा उसका डर है, कोई कंपटीशन आ जाएगा उसका डर है। व्हाट इज द फियर गाइस, व्हाट इज द फियर? डिस्कस इट ओपनली। हो सकता है कि पहले फैमिली ने ट्राई किया था एक ग्लोबल बिजनेस का, एक जॉइंट वेंचर आदमी के साथ काम करने की कोशिश करी, वो बंदे ने हमको थोड़ा बैकलैश कर दिया होगा, बैक स्टैब कर दिया होगा, जिसके कारण फैमिली एकदम डर गई है कि अपने को अभी कोई फॉरेन से काम ही नहीं करने का, अपने को सिर्फ लोकल काम करने का। दैट्स व्हाट देयर माइंडसेट इज, दैट्स परफेक्टली ओके, गलत नहीं है। लेकिन वो जो उस समय पे था, उस समय पे जो शायद गलती की, जरूरी नहीं कि हम वो सेम गलती अब करेंगे, जरूरी नहीं है कि वो ही चीज हम दोबारा दोहराएंगे, रादर वी माइट हैव सम बेटर मैकेनिज्म टू काउंटर दैट, and once it can once we have the right thing to counter it, absolutely possible. So my first point to tell you guys is that it's a change in mindset, that businesses in future are not going to be local, they by force are going to be global. हम यदि ऐसा नहीं सोचेंगे तो हम ब्लाइंड आई करेंगे, एंड फिर वो और कोई बंदा धंधे में आगे निकलेगा डूइंग ग्लोबल। आशीष पारेख का एक क्वेश्चन है, सर आई हैव अ क्वेरी, प्लीज लेट मी नो व्हेन आई कैन आस्क। यस आशीष जी, एक काम करना, आप है ने मेरा अभी डन हो जाएगा तब आप पूछ लेना, आपके क्वेश्चन को आपके क्वेश्चन बैंक में लिख के रखो, आपके नोट्स में लिख के रखो, कॉपी पेस्ट कर देना इधर। आपका आंसर मैं दे पाऊंगा तो आई विल बी वेरी ग्लैड टू, इन केस आंसर नहीं दे पाया तो आई विल फाइंड अ सोर्स टू गिव यू द आंसर। ओके, आई होप दैट्स ओके विद यू, थैंक यू। लेट्स कंटिन्यू, दैट्स माय फर्स्ट सबमिशन। मेरा सेकंड सबमिशन, globalization guys does not mean that we are going to be a victim once again of any superpower. Wait, look at me. बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई थी मेरी और मेरे फादर की। मेरे फादर मेरे को बोलते हैं कि समीश, तुम्हारा ग्लोबल फैमिली मैनेज बिजनेस जो प्रोग्राम है वो इंटरनेशनली रेप्यूट होता है क्या नहीं होता है? मैंने बोला दैट मस्त क्वेश्चन है। अब मैं आप लोग को पूछता हूं, यदि दुनिया में वहां से कुछ लेने की हमारे में क्या कहते हैं ओपननेस आती है, तो वो लोग हमसे एक्सेप्ट करने की भी ओपननेस रखेंगे। कहने का मतलब ये है गाइस कि वी आर ऑल्सो हैविंग द कैपेबिलिटी टू गो ग्लोबल इन आवर सर्विसेज, इन आवर इंटेंजिबल थिंग्स सच एज कल्चर एक्सेट्रा। मतलब मैं हमेशा बोलता हूं कि व्हाट इंडिया कैन गिव ऑफ फैमिली बिजनेस टू द वर्ल्ड, नोबडी एल्स कैन गिव। फादर एंड सन दो लोग काम करते हैं और उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, होती है तो शायद टैक्सेशन पर्पस से होती है, अदरवाइज काम करने के हेतु से नहीं होती। कभी बच्चे को वेकेशन लेने का है तो पापा को बोलता है कि पापा उसको बोलता है बेटा एक काम कर, ले ले वेकेशन, बहुत काम कर लिया। नहीं नहीं पापा सीजन अच्छी है, मैं एक बार ये खत्म करूं उसके बाद चला जाऊंगा। एंड वो एक्चुअली जाता है और तब पापा ऑफिस हैंडल कर भी लेता है। एंड जब कभी पापा को बोलते हैं कि पापा जाओ ना, अभी एक अच्छा कथा है, आपके फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, तो नहीं 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 बेटा रहने दे, अभी ये हार्वेस्टिंग सीजन चल रही है, तो अकेला कितना हैंडल कर लेगा, इट इज बेटर दैट आई एम आल्सो विद यू। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। अब ये एक दूसरे के लिए काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो हमारे फैमिली बिजनेस में है। आर वी एबल टू सेंड दिस एंड स्प्रेड दिस टू द वर्ल्ड? इफ नॉट, डू इट। इफ नॉट, डू इट। फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस दिस थॉट टू द वर्ल्ड। जब हम लोग को चांस मिलता है तो हम करते हैं।
I had a couple of seminars in which I was addressing to a couple of business groups in different part of the world, and I was telling them this fact. But idea ये है guys कि मेरे पास जो है उसका मेरे को प्राइड कितना है वो बहुत जरूरी है। छोटा सा गांव है, लगभग 1-1.5 लाख के लोगों का, और उसमें मेरी एक दुकान है। फॉरेन कंपनी आके बोलती हैं यदि तुमको मेरा प्रोडक्ट चाहिए तो तुमको मेरे को इतना चार्जेस देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे इतने छोटे से शहर में तो तुमको इतना मेरे को मिनिमम गारंटी बिजनेस दे ही नहीं पाओगे, सो आई विल नॉट बी हैप्पी सेलिंग प्रोडक्ट टू यू। तुमको ऐसा बोलना चाहिए, ये मार्केट में तुम हो ही नहीं। इस मार्केट में एंट्री लोगे बिकॉज ऑफ माई क्या कहते हैं माई गुडविल। इफ यू वांट टू प्लेस योर प्रोडक्ट, place it. I'm not going to pay any charges to you, but the day the market becomes big for you, you will have to pay me something. ये जो कॉन्फिडेंस हमारा है वो हमारी प्राइड से, और हमारी प्राइड खुद का बिजनेस है। एंड ग्लोबल का मतलब ये नहीं कि अपने को झुकना है, ग्लोबल का मतलब ये है कि हमारी जो प्राइड है उसको लेके आगे जाने का है। जब हम कुछ लेके जाते हैं तो उनको भी जरूरत है, वो लेके आते हैं उनको भी जरूरत है, उनको टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने की जरूरत है, उनको मार्केट की जरूरत है, हमको शायद वहां का इंटेलिजेंस का जरूरत हो सकता है, वहां के डिजाइन की जरूरत हो सकती है, वहां के पैकेजिंग स्टाइल की जरूरत हो सकती है, वहां की चीपर सोर्स ऑफ फंड की जरूरत हो सकती है, वहां का मे बी कोई और एक रिसोर्स की जरूरत हो सकती है। इमेजिन, मैंने खुद कितने एग्जांपल्स दे दिए। बट रुकना नहीं, झुकना नहीं। हम लोग किसी भी हालत में इस चीज को स्टॉप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास है कुछ देने को, एंड वो जो चीज है वो हमारा प्राइड है, गौरव है। Businesses have to become global. That is first thing, change in the mindset. Second, carry the pride of your own family business because they also equally need you, you equally need them. ये दो चीज समझना जरूरी है, दो चीज समझना जरूरी है। पिछले 2 साल के कोविड में, मतलब 2021 की बात कर रहे हैं अपन, 2020 2021 में, COVID was a brilliant teacher that the world has now become the size of this laptop or perhaps the size of this phone. Why? Every meeting was possible on phone and people across the world were having the meeting online. Suddenly world converged into one बीमारी। कभी सोचा है कि इंडिया का आदमी मलेरिया के बारे में रोता था, लेकिन अफ्रीका का आदमी का बंदा येलो फीवर को लेकर रोता था, लेकिन कोई यूरोप का आदमी कभी इनको लेकर रोया नहीं, क्योंकि उनको लगा यू गाइस आर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड तुम लोग क्या सब बीमारी होती रहती है। लेकिन एक बीमारी ने पूरे वर्ल्ड को जोड़ दिया कि भाई इमेजिन दिस। मतलब कोविड की बात यहाँ पे भी वही होती है जो वहां पे होती है, कोविड का टेस्ट यहाँ पे भी वही होता है जो वहां पे होता है। I mean, imagine guys, कोविड एक ग्लोबल बीमारी थी, तो बीमारियां भी अब तो ग्लोबल होने लगी हैं, और साला हमारा आज भी माइंडसेट ये है कि मैं सुखी हूं, समृद्ध हूं, शांति है, छोटा धंधा मेरा अच्छा चल रहा है, मैं लोकल बिजनेस में खुश हूं। नहीं, अभी मैं अपना एक बच्चा है उसके घर पे गया था, मैं उसके साथ कुछ बात कर रहा था, तो मैंने उसको बोला कि बेटा जब हम बिजनेस ग्लोबल करते हैं ना, तो हम लोगों के साथ काम करते करते अपने आप को फ्लेक्सिबल भी ज्यादा बना लेते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो जाती है, हमारा पर्सपेक्टिव भी बेटर हो जाता है, हमारा खुद का इंडिविजुअल डेवलपमेंट बेटर हो जाता है। लोकल में काम करते हैं तो हमारी नाक के नीचे लोगों को दबा देते हैं, पैर की जूती समझते हैं। वी आर मोर पावरफुल देन एनीबॉडी एल्स बिकॉज़ लोकली वी आर कंट्रोलर्स। तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, तुम्हारा प्रोडक्ट खराब है, बोलने का शायद बहुत लोगों में जिगर ही नहीं है, इसलिए डरते हैं। क्यों? ये बहुत बड़ा आदमी है, अभी उसके सामने अपन बोल लेंगे तो ये हमको अटैक करेगा, विल बी फिनिश्ड। व्हाई? बिकॉज़ लोकल वी आर किंग्स, वी आर द राजास। लेकिन ग्लोबली वो कंपनी अपने को इतना बड़ा एक प्रोडक्ट का रिपोर्ट ईमेल कर देगा, योर प्रोडक्ट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड, और अपनी फटी फटाई हालत हो जाती है। हम सोचते हैं साला लोकली कितना अच्छा चलता है, लेकिन फॉरेन में हमारा प्रोडक्ट ही नहीं चला। इट्स रॉन्ग एंड वी एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट इट। बट तब बैड फील करके काम नहीं होगा, वो जो बैड फीलिंग है उसके सामने अपने पास एक तोड़ है। श्योर सर, थैंक यू फॉर द फीडबैक, विल मेक इट बेटर, वी विल मेक इट बेटर। इतना कैंडिड फीडबैक आपको आपके कस्टमर ने दिया, जो ग्लोबल कस्टमर है। तो तुम्हारा प्रोडक्ट जो कल तक एक लोकली अप्रूव्ड प्रोडक्ट था, अब ये
फॉरेन अप्रूव्ड प्रोडक्ट हो गया, इंटरनेशनली अप्रूव्ड प्रोडक्ट हो गया, एक साथ अब कितनी अनगिनत कंट्री में जा सकता है, सोचो सोचो। पर ये हम लोग में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम कभी कभार एक कंफर्ट जोन में हो जाते हैं। नहीं गाइस, सच कह रहा हूं। आप में से कुछ लोग की ग्लोबल कंपनीज हो सकती है, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन ज्यादातर लोग की नहीं होती हैं। वी आर कंफर्टेबल इन कंफर्ट जोन, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा ग्रो करने का जो स्पिरिट है, ग्लोबल होने का स्पिरिट है, वो कोई ना कोई तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। I'm not saying that we are too much resilient to it, but somewhere our comfort zone is a very strong resistance to our growth. And that resistance is not allowing us to take the leap of faith. किसका faith? तुम्हारा खुद का faith. किसका business? तुम्हारा business. वो business जिसके बारे में तुम सब कुछ जानते हो. You know the product, you know the class, you know the crack ingredients, you know everything about it. फॉरेन कंपनी आके यहां पे धंधा करती है, लेकिन हमको वहां जाने में डर लगता है। मतलब हम सबको मालूम है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस वर्ल्ड की तो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि अपने को समझ में भी नहीं आती है, जैसे कि जापानीज है, कोरियन है, या वगैरह वगैरह लैंग्वेजेस। लेकिन वहां के लोग आके के धंधा करते हैं। हुंडई आता है, एलजी आता है, सैमसंग आता है। आई मीन इमेजिन तो करो यार, वर्ल्ड की इतनी सी कंट्री है वो, और उसका एक प्रोडक्ट है सैमसंग जो वर्ल्ड वाइड बनाया। कभी सोचा है कि यदि वो लोग ग्लोबल नहीं सोचते तो उनका प्रोडक्ट तो सेल्फ कंजम्पशन में कभी ग्रो ही नहीं हो सकता था। हमारे पास तो दोनों चीज है, लोकल मार्केट भी बहुत बड़ा है, फॉरेन मार्केट भी बहुत बड़ा है। लोकल मार्केट की डिमांड इतनी पावरफुल है कि हमको बोलते हैं सामने से, मेरे को ये प्लास्टिक का बोतल नहीं चाहिए, मेरे को ये क्वालिटी का प्लास्टिक का बोतल चाहिए। आप दे सकते हैं, हम नहीं बना के दे सकते, कोई बात नहीं यार, फॉरेन से लेके आ सकते हैं, फॉरेन से प्लास्टिक का ग्रैन्यूल लेके आ सकते हैं, वहां से शायद टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं, आई डोंट नो। हमारे कस्टमर तो डिमांडिंग है, तो वहां से लेके आने में भी हमारे पास कैपेबिलिटी है। But we must aim to do it, and we must aim to do it in a big way. जब हम ऐसा कर सकेंगे, गारंटीड गाइस, हम अपने बिजनेस को कोई ना कोई तरीके से ग्लोबली ट्रांजिट करने जाएंगे, ग्लोबली ट्रांजिट करने जाएंगे। एक क्वेश्चन है, okay, I enjoy putting quiz in between because that just keeps me, you and me, live and attentive. On the wildest guess, एक पेट्रोल ड्रिवन या एक डीजल ड्रिवन ऑटोमोबाइल कार की बात करते हैं, पैसेंजर कार की बात करते हैं, हाउ मेनी components or parts are in such a vehicle? Your time starts now, guys. Start writing the number. 1 lakh pieces हो जाएंगे बेटा, पार्ट्स कंपोनेंट्स में थोड़े कम होंगे, 1 लाख नहीं होंगे, doesn't matter. Anybody else? 1 lakh is too much, but yeah, ठीक है. Anybody else? Come on guys, make a guess. Anything. पिस्टन आता है ना, ये आता है ना, वो आता है ना, गास्केट. Okay, 30,000 sounds little more reasonable, makes sense. Anybody else? I think आप लोग गूगल करके चेक कर रहे हो. Okay, ये मत करो यार, just simply type it out. Satyam become better, 20,000, good, makes sense. Apollo Smith says 30,000. Anybody else? मैं एक प्रोफेसर को जानता हूं, तो उन्होंने मुझे एक नंबर बताया था, एंड उन्होंने जब मुझे बताया था तब भी मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया था. मैं बोला क्या बात करते हो? तब उन्होंने एक और मेरे को गूगली डाली थी. बोले कभी सोचा है समीश कि ये जो पार्ट्स है उनमें से कितने पार्ट्स के कितने रॉ मटेरियल फॉरेन से आते हैं, ऑल्दो 100% लोकली मेड कंपनी होती है, लोकली मेड प्रोडक्ट होता है. तो Have you ever thought like that? And जब उन्होंने बोला तब मैं शॉक्ड हो गया था. गाइस, नॉर्मली एक गाड़ी में यदि हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, पार्ट्स की बात करते हैं, छोटे छोटे पीसेस की तो कोई हिसाब ही नहीं है. नट बोल्ट का हिसाब करने जाओगे तो वो 1 लाख वाला लड़का राइट हो जाता है. लेकिन अदरवाइज कहीं देखा जाए तो 32 से 35,000 पार्ट्स की बात होती है. और उसमें जो वो पार्ट्स है, तो उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आते हैं, वो बहुत सारी चीजें कभी इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि उस क्वालिटी की चीज शायद हमारे पास लोकली अवेलेबल नहीं होती है. लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, उसके जो मैन्युफैक्चरर्स अपने यहाँ होते हैं, वो चीज बना के फिर यहाँ से वापस उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं. क्यों? क्योंकि उस लेवल का मशीनिंग वर्क शायद बाहर बहुत महंगा पड़ता है, यहाँ पे सस्ता पड़ता है.
कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होते हैं गाइस, एम्प्लॉय की इंटेलिजेंस होती है। आप सरप्राइज हो जाओगे, हमारा एक स्टूडेंट है who is running his design and R&D center in Italy. One of our student has done a joint venture with a company which is based in Italy and running a business in Vapi. One of our student has one plant in India and another plant in Zambia. We have one of our एक पार्टिसिपेंट मिला था एक ओपन प्रोग्राम में, एंड उनका प्लास्टिक का एक यूनिट यहाँ इंडिया में है जो उन्होंने बंद कर दिया, एंड दूसरा इथियोपिया में है जो चालू किया। मैंने बोला क्यों? बोलता है सर सस्ता पड़ता है। बोले जाने का दूर नहीं है। बोले पहला प्लांट मेरा नॉर्थ ईस्ट में था, तो मेरी जगह से नॉर्थ ईस्ट जाने पे मेरे को 4 घंटे तो लगते ही थे, तो व्हाई नॉट एंड डू दैट। 4 घंटे में अनदर 4 घंटे जोड़ के मैं इथियोपिया में रन करूं, मेरे को कॉस्ट भी सस्ता पड़ता है, वहां पे बंदे भी लोकल मिल जाता है। मैं एक बंदे को जानता हूं दिल्ली में, उसका एक यूनिट है, उसका दूसरा ब्रांच इज नाउ इन वियतनाम। मैं एक और बंदे को जानता हूं जो राइस को एक्सपोर्ट करता था, इनिशियली एक्सपोर्ट करता था टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नहीं जमा कोई कारण से स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट टू द वेस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड एक बार तो मैं ही उसको मिला था वहां पे जापान में, तो मेरे को बोलता है कि सर आपको मैं बताता हूँ, चलो दिखाओ इसका मार्केट कितना है, राइस एक्सपोर्ट करता है। सोचो यार, कोई कौन सी कंट्री बाकी नहीं है, लेकिन पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि हाँ मुझे ग्लोबल माइंडसेट से काम करना है, नंबर 1, एंड नंबर 2 कि मैं कभी भी इस चीज को मेरे ग्रोथ के बीच में आने नहीं दूंगा। ये 2 चीज मैं बहुत क्लियर रखूंगा कि इसको आई विल नेवर अलाउ दैट टू कम इन द passage of my growth. If I turn a blind eye to it, I'm doing the biggest disrespect and injustice to my own family business, and that's important. So that's my second submission, guys. And मेरा third and final submission, यहाँ पे मेरे पास एक जन ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। One of my cousins did this course procuring special grade metal from Italy for defense. Possible बेटा, 100% possible. And ये एक चीज नहीं है, ऐसे अनगिनत है। पर आपने जो लिखा है ना, वो एक मैसेज सबके लिए है कि ओपननेस चाहिए। एनीवेज, मेरा थर्ड एंड फाइनल थिंग, वर्ल्ड के दो एस्पेक्ट्स हैं, वर्ल्ड के 2 एस्पेक्ट्स हैं, ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर की बात नहीं करो, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। दोनों जगह पे हमारे पास दोनों अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जो हमको अलग अलग बेनिफिट्स दे सकते हैं। इसलिए कभी कभार तो मैं ये बोलता हूं कि रादर देन हैविंग आइदर और एज एन ऑप्शन, वी शुड हैव बोथ एज एन ऑप्शन। कहने का मतलब ये है, शुड आई गो देयर और शुड आई गो हियर? आई शुड गो देयर एंड आई शुड गो देयर। Why? As I said, दोनों के कल्चर, दोनों के माइंडसेट, दोनों के अप्रोच, दोनों के फंडामेंटल्स, दोनों के अप्रोच टू पर्सपेक्टिव इज आल्सो वेरी डिफरेंट। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, ईस्टर्न वर्ल्ड के पास हमेशा से जगह, स्पेस की स्केर्सिटी रही, सो दे ऑलवेज ट्राई टू डू थिंग्स इन ए बिग थिंग्स इन ए स्मॉलर प्लेस। तो छोटी छोटी गाड़ियां बनाने का, बड़ी चीज में छोटी चीज को फिट करने का, वो पहले से ही करते आए। So fundamentally उनके पास यही था कि if you want to do a miniaturization of a big thing, we are the people. So सबसे बड़ा टेप रिकॉर्डर का छोटा सा वॉकमैन सोनी ने बनाया था, वो उस जमाने की बात है। आज की तारीख में if you happen to just cruise about जापान या कहीं पे, तो आप देख लेना, वहां पे छोटी छोटी चीजों में ऐसा सामान फिट किया होता है कि अपन सरप्राइज हो जाए कि यार दैट्स वेरी इंटेलिजेंट ऑफ देयर थिंकिंग, स्पेस यूटिलाइजेशन का बहुत ही अच्छा आइडिया है। Exactly go the other way around. Go to the Western world. वहां पे उनके पास स्पेस की थोड़ी लिबरलिटीज है, जगह की थोड़ी लिबरलिटीज है, तो वो लोग बड़ा बड़ा चीज बनाए हैं। मैं ये पर्सपेक्टिव भी समझता हूं, मैं ये पर्सपेक्टिव भी समझता हूं। दूसरा, ईस्टर्न वर्ल्ड पे बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज आई थी, अभी तो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी आती हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड के पास जो जगह है उसमें नेचुरल कैलामिटीज कुछ कुछ पार्ट को हिट कर दी, बाकी पार्ट को हिट नहीं करती। तो उन लोग का जो अप्रोच टू लाइफ एंड टू चैलेंजेस है वो डिफरेंट है, यहां पे डिफरेंट है। तो लर्न दैट। थर्ड थिंग, कल्चर।
यहाँ पे एक अलग प्रकार का कल्चर है, यहाँ पे एक अलग प्रकार का कल्चर है। यहाँ पे जब भी मैं ईस्टर्न वर्ल्ड में जहां जहां पे भी गया हूं, तो जिस बंदे को मिला हूं, तो मैंने काफी इंडियनाइज्ड कल्चर देखा है। बंदा मिलता है तो ग्रीटिंग से स्टार्ट होता है, वेलकमिंग से स्टार्ट होता है, गेस्चर अलग है, थोड़ा फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल डिस्कशन होता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में आप जाओ तो कुछ कुछ जगह पे इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मल कल्चर होता है, कुछ जगह पे है इनफॉर्मल, लेकिन ज्यादातर फॉर्मल कल्चर है। तो अब जब ये हम चीज समझते हैं ना, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग बेटर होता है, डेवलपमेंटल कर्व बेटर होता है। एंड जब ये डेवलपमेंटल कर्व बेटर होता है, तो हमको मालूम पड़ता है, अच्छा हम इस प्रोफाइल के बंदे को मिल रहे हैं तो हमें ऐसे बात करने की है, हम इस प्रोफाइल के बंदे को मिल रहा है हमको ऐसी बात करने की है, मुझे ये टाइप की एडवर्टाइज बनाने की, मेरा टारगेट कस्टमर यहाँ का है, मेरे को ऐसी एडवर्टाइज बनानी पड़ेगी, मेरा टारगेट कस्टमर ये है तो मुझे ऐसी एडवर्टाइज बनानी पड़ेगी। आपको सच कह रहा हूं, आपका जो पर्सपेक्टिव है ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग द सप्लायर, अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल, कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट इज ड्राइविंग करंटली ग्लोबलाइजेशन। एंड वी एट GFMB program make a tremendous effort to bring this to you. Why? Because हम ये मानते हैं दृढ़ पूर्वक कि ऑल बिजनेसेस के पास एक ही ऐसी लाइफ है जिसमें फादर एंड सन या फादर एंड डॉटर साथ में है, मतलब दो जनरेशन साथ में, फादर को नहीं तो चाचा मामा भतीजा कोई भी हो सकता है, ये जनरेशन साथ में है। और जब ये जो जनरेशन साथ में है, तो दोनों की जो ताकत है उसको लिवरेज करने का बेस्ट टाइम तब होता है जब दोनों साथ में है। पहले फादर अकेले था, तब आप स्टूडेंट थे, बच्चे थे, तो ये बेचारा जितना ग्रो सकता कर सकता था। अभी दोनों मिल गए तो सॉलिड ताकत हो गई। एक स्टेज के बाद फादर की एज हो जाएगी, वो धंधे से बाहर निकल जाएंगे, आप अकेले होंगे खींचते हुए, तो 1 सेकंड आप अकेले हो जाएंगे। तो दोनों जो साथ में है ना, वो पीरियड लगभग 10 से 12 साल का है। आई होप यू गाइस आर पेइंग अटेंशन टू मी वेरी क्लियरली। गाइस लुक एट मी, the father and son being together, that period is going to be about 10 to 12, maximum 15, or maximum 20-22 years. That's it. और ये 20-22 साल में तुम दोनों मिलके जितना ग्रोथ कर सकते हो ने शायद कभी भी नहीं कर पाओगे। इस मौके का पूरा फायदा उठा लो, और ऐसा फायदा उठाओ कि जो तुम सोच नहीं पाओ। बिना रुके, बिना झुके, डोंट वेट। एक गिर गया तो दूसरा उसको संभालने के लिए, एक गिर गया तो दूसरा उसको संभालने के लिए है। ये जो आपके पास मौका आया है उसको छोड़ना नहीं, ये जो मौका है उसको किसी भी हालत में कुर्बान नहीं होने देना। जरूरत पड़े तो वहां पे शिफ्ट होना पड़ा तो पापा को बोला, पापा मेरे को लगता है टू शिफ्ट टू दुबई, क्यों? क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बिंदास चले जाओ ना। आपके पापा मानेंगे नहीं मानेंगे, मेरे साथ बात करा देना, हम किसी भी तरह उनको पटा लेंगे। जोक्स अपार्ट गाइस, आई वुड लाइक टू मेक श्योर कि क्यों ना कह रहे हैं, तो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस, किस तरह से वो मान सकते हैं। बट जरूरत पड़े तो शिफ्ट हो जाओ, जरूरत पड़े तो एजेंट करो, जरूरत पड़े तो बाहर का आदमी मैनेजर रख के वहां पे ऑफिस चालू करो। चॉइस आपके ऊपर है गाइस, चॉइस में, ऑप्शन में आपको बहुत सारे दे सकता हूं, लेकिन डिसीजन आपको लेने का है। खाली पॉइंट ये है कि आज की तारीख में हम दुनिया से आंख मूंद नहीं सकते हैं। 1 लाख लोगों का गांव है तब भी जरूरी है, 10 लाख लोगों का शहर है तो भी जरूरी है। Today our businesses are global and we do not have a choice to avoid being a global company. That's the only ideas guys why we wanted to do this session with you. हमारा पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है गाइस। कोई भी फैमिली बिजनेस टिक गया तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम तो डे 1 से ऐसा मानते हैं फैमिली बिजनेसेस मरने नहीं चाहिए। लेकिन टिकने के साथ साथ अब मैं उनको वहां पे रोकना नहीं चाहता हूं। अब मैं चाहता हूं कि ये बिजनेसेस अपनी नेक्स्ट छलांग लगाए। और फिर एक इंटरेस्टिंग चीज है, मेरे को कुछ बच्चे आके बोलते हैं, सर ये छलांग कब लगानी चाहिए? नेक्स्ट ईयर लगाऊं चलेगा? क्यों? इस साल तेरे को मुहूर्त देखने का है। अबे 2 साल तो वैसे भी साफ हो गए हैं। छलांग लगाने का टाइम मैं आपको बता दूं, यस्टरडे। कर लो डिबेट मेरे साथ, कर लो साथ मेरे साथ डिबेट, यस्टरडे। अब समझ में आया? मतलब मैं भी आज सोचता हूं कि छलांग कल ही लगाना चाहिए था, कल लगाने का वेट नहीं करना है। कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं इतना तैयार हो जाऊं, तैयार। अबे तू कभी तैयार होएगा ही नहीं, कभी तैयार होएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो निटी-ग्रिटीज में उलझा रहेगा तो तैयारी कब आएगी ही नहीं।
ये कभी नहीं आएगी। हम में से बहुत सारे लोग शर्ट पहनते हैं सुबह तैयार होते वक्त, मेरे को बताओ कि एकदम जीरो क्रीज का शर्ट होता है क्या? अब नहीं पे इस्त्री में भी 2-3 क्रीज तो आ ही जाएगी, वहीं पे 2-3 क्रीज तो आ ही जाएगी। एकदम बिना क्रिस्टल के, बिना क्रीज का एक भी शर्ट हो ही नहीं सकता है। तो why wait for so much of perfection at the local level, guys? Let somebody else come from global, make our business locally robust, and will become better, become globally competitive. उसके सामने ही एक बार कभी कंपटीशन में खड़े हो जाएंगे। सोचो यार, डर किस चीज का? ये एक पूरा पर्सपेक्टिव था जिसके कारण मैं आज आप लोग से बात करने के लिए आया था। मेरा पर्पस बहुत क्लियर है कि फैमिली बिजनेसेस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी गाइस, अब नहीं तो कभी नहीं। Number one. Number two, it's a matter of mindset. Number three, it's not necessary that you have to go and give only or you have to take only. It's the way you can do the barter from different parts of the world. And thirdly and finally, guys, it's very important that अब आप इस चीज का फायदा उठाओ, क्योंकि अभी सही समय है। फादर एंड सन इन द राइट कॉम्बिनेशन, या फादर डॉटर मतलब एक पारिवारिक बिजनेस इज द राइट कॉम्बिनेशन, दोनों साथ में है, वो आपके पास 15-20 साल साथ में है। तो ये 15-20 साल जो आपके पास है उसमें इतना फायदा उठा लो कि आपको अगले 5 साल, 15 साल तक और कुछ सोचने का, देखने का जरूरत नहीं आए। With those words, my dear friends, I wish you all the best. Have a great time. Have a wonderful Sunday. And do keep thinking on this Sunday कि हम कुछ और नया क्या कर सकते हैं as far as my business is concerned to take it global. With those words, thank you very much. I'm opening the floor for questions. You are allowed to please ask me questions in case you would like to, or else have a great day ahead for the ones who are leaving this platform. Thank you very much for being a very participative audience, guys. I asked questions to you and you have responded. God bless you guys.